اس کی آنکھوں میں کرب کے ساتھ نمی تھی، کرب دھوکا کھانے کا، کرب ٹوٹ جانے کا، اور کرب اعتبار ٹوٹ جانے کا۔ وہ روتے ہوئے اس تبدیل انسان کو بددعائیں دے رہی تھی۔ میری بددعا ہے سالار احمد کہ تم بھی اپنی زندگی میں اسی دگنے درد سے گزرو جو درد تم نے مجھے دیا ہے۔ تم پر بھروسہ کر کے میرے پاس کچھ باقی نہیں بچا، کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں بچی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ لڑکی بے بسی پر روتے ہوئے اپنی ذات کے لٹ جانے پر ماتم کر رہی تھی، جبکہ سالار احمد لاپرواہی سے بیڈ پر بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا۔ بیڈ کی چادر شکن آلود تھی جو گزرے لمحات کی نشاندہی کر رہی تھی۔ سالار احمد بکھرے بالوں اور ڈھیلے ڈھالے نائٹ ڈریس میں بہت پرسکون تھا۔ اس کی بات پر ماتھے پر بل پڑ گئے۔ خاموش ہو جاؤ اور مجھے اتنے حسین لمحات میسر کیے تو اب میرا موڈ کیوں برباد کر رہی ہو؟ میں اس وقت اچھے موڈ میں ہوں، مجھ سے ڈھنگ کی بات کرو، کوئی رومانوی بات کرو تاکہ میرا دل اس پر مزید سرشار ہو جائے، نہ کہ یوں دل جلانے والی باتیں شروع کر دو۔ وہ لاپرواہی سے سگریٹ پھونک رہا تھا۔ تم ایک خود پرست اور گھٹیا انسان ہو۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ تم جیسے کمزرف انسان سے محبت کی اور تمہاری باتوں میں بہک کر اپنا سب کچھ لوٹا بیٹھی۔ اب دیکھو تو کیسے مزے سے بیٹھے ہو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تم نے میرا دل اجاڑ دیا، خدا کرے تم بھی اجڑ جاؤ۔ مجھے شادی کے چاند سے میں اس مقام تک لے آئے اور اپنی بات سے پھر گئے۔ ظاہر ہے اب تمہیں مجھ سے کیا لینا دینا کہ تم میری فکر کرو۔ وہ سالار کی بے حسی پر کڑ کر رہ گئی تھی مگر کچھ کرنے کے قابل نہیں تھی۔ سو غصے سے اپنے کپڑے سمیٹ کر بیگ میں رکھنے لگی۔ شاید کہ اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھ سے محبت کرتی ہوں۔ محبت کرنے والے یوں بار بار جتایا نہیں کرتے۔ میں تو تمہیں اب بھی ساری زندگی اسی طرح محبت دے سکتا ہوں۔ اتنی فکر تو ہے تمہاری کہ خود سے کبھی دور نہیں کروں گا، مگر تم مشرقی لڑکے کے دماغ میں جانے کیوں یہ خناس بھرا ہوتا ہے کہ اگر دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو انہیں کسی ٹھوس اقدام کی ضرورت پیش آئے۔ لازم تو نہیں کہ ہر محبت کرنے والے کی شادی ہو جائے۔ شادی کے بغیر بھی تو میں تمہیں خوشیوں سے بھرپور زندگی دے سکتا ہوں، مگر تم خود ہی ضد کر رہی ہو، اپنی ذات سے باندھنا چاہتی ہو۔ میں آزادانہ زندگی گزارنا پسند کرتا ہوں، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تمہاری ذات سے۔ تم اب بھی میرے لیے اتنی ہی اہم ہو جتنی کل تھی۔ سالار احمد نے کمال بے نیازی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کی حیثیت جتائی تھی۔ میں توکتی ہوں تمہاری اس گھٹیا محبت کو۔ میں نے کب کہا تھا تم سے کہ مجھے یہ زندگی چاہیے؟ یہ دو ٹکے کی محبت اپنے پاس رکھو سالار احمد۔ بس اتنا یاد رکھنا کبھی نہ کبھی تمہیں اپنی ذات کا غرور کھونا ہوگا۔ میں نہ صحیح کوئی تو ہوگی جو تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گی۔ وہ رو رہی تھی اور سالار احمد کو منانے کی ہر کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بلا کا پتھر دل ثابت ہوا تھا۔ ایزی چیئر پر جھولتے ہوئے اطمینان سے سگریٹ پھونکتا رہا اور پلٹ کر ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا جو کب سے ایک ہی جگہ کھڑی مسلسل بول رہی تھی، بے وجہ خود کو مت تھکاؤ، اگر تمہیں مطمئن نہیں ہو تو جا سکتی ہو، میں زبردستی کسی کو اپنے ہمراہ لے کر چلنے کا قائل نہیں ہوں۔ سالار احمد کے ماتھے پر شکنوں کا جال ابھر آیا تھا۔ شاید اب اس لڑکی کی باتیں بھی اس کو پسند نہیں تھی۔ تمہیں اس بات کا کوئی احساس نہیں کہ میں تمہاری وجہ سے اس قابل بھی نہیں رہی کہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر سکوں؟ ایک بار سوچ لو، تم بہت بڑی زیادتی کر رہے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں پچھتانا پڑے۔ وہ اپنی جسمانیت کا غرور بالائے طاق رکھ کے سالار احمد کو آخری حد تک کوشش کر کے شادی کے لیے قائل کرنا چاہتی تھی، مگر سالار کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا۔ وہ اتنی آسانی سے پسند جاتا، یہ تو ہر بار کا ڈرامہ تھا جس کو وہ سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ خدا کرے تمہیں بھی کسی سے محبت ہو جائے اور وہ بھی ایسے تمہاری ذات کو دو کوڑی کا کر دے، ایسے ہی تمہیں ٹھکرا دے، تمہارا غرور تم سے چھین لے۔ خدا کرے جلد تم اپنے تمام گناہوں کا کفارہ ادا کرنے پر مجبور ہو جاؤ۔ وہ اپنی تمام تر کوششوں کو رائے گا جاتا دیکھ کر سختی سے آنسو رگڑتی جھٹکے سے مڑی اور اپنا سامان لیے اس کمرے سے اور سالار احمد کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ سالار احمد لاپرواہی سے سر جھٹک کر مطمئن ہوا تھا۔ کون جانتا تھا کہ اس بار وہ کتنی بڑی مشکل میں پھنستے جا رہا تھا۔ خاور صاحب، ہمارا بیٹا ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے، اب وہ جوان ہو گیا ہے، ہمیں اس کے لیے شادی کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے قابو سے ہی بالکل نکل جائے۔ میرا اکلوتا بیٹا ہے، میں اس کو اتنے غلط راستے پر گامزن نہیں دیکھ سکتی۔ شاردا بیگم اپنے لاڈلے کی نت نئے کارنامے سن کر بہت پریشان تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے ایک دو بات کرنا چاہی تو اس سے صاف انکار کر دیا۔ اب آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ خود اپنے لاڈلے کو راضی کریں۔ اگر وہ مان جاتا ہے تو میں آج ہی اپنی دوست نواب خان سے بات کر لوں گا۔ اس کی بیٹی بہت سلجھی ہوئی، پڑھی لکھی اور خوبصورت ہے، خاندان بھی اعلیٰ ہے، مجھے پورا یقین ہے ہمیں رشتے کے لیے انکار نہیں ہوگا، مگر پہلے اپنے لاڈلے سے پوچھو۔ زبردستی والی بات بھی نہیں ہونی چاہیے، میں نہیں چاہتا میرے برسوں کے تعلقات رشتے داری میں بدل کر خراب ہو جائے۔ خاور احمد جو
कहना चाहते थे। शाइस्ता बेगम बखूबी समझ रही थी, आप फिक्र मत करें, हमारा बेटा भी बहुत समझदार है, वो कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा जो हमारे लिए बदनामी का बायस बने। मैं खुद इससे बात करती हूँ। शाइस्ता बेगम इतने अच्छे ख़ानदान में रिश्ता हो जाने की उम्मीद पाकर खुश हो गई थी। अब सालार अहमद की वापसी का इंतज़ार था, जो रात को दोस्तों के साथ कंबाइंड स्टडी के लिए गया था। इस वक्त यूनिवर्सिटी में होना था। शाम को वो न चढ़ा शहजादा घर लौट आया। शाइस्ता बेगम इसको देखकर मुतमईन हो गई। शुक्र है कि ये घर पर है, आज बात कर ही लूँ। इन्होंने बेटे को सीढ़ियों की जानिब जाते देख लिया था। डिनर के बाद तसल्ली से इसके पास जा पहुंची। सालार बेटा, मुझे तुमसे बात करना है। शाइस्ता बेगम ने अपना सेल पर मसरूफ़ बेटे बेटे के सरहाने बैठकर इसके मिजाज को अंदाज़ा लगाना चाहा। मामा, आपको पूछने की क्या ज़रूरत है? बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? सालार मोबाइल एक तरफ रखते हुए माँ की गोद में सरक चुका था और शाइस्ता बेगम बड़े प्यार से बेटे के घने मालों में उंगलियां चलाने लगी। बेटा, अब मैं पूरी हो गई हूँ, सारा दिन घर पर अकेले रहते दिल परेशान हो जाता है। अब तो शादी कर लो ताकि मुझे भी कंपनी मिले। इन्होंने बेटे को कायल करना चाहा। सालार, जो खुद भी आज सबसे इस लड़की के अल्फाजों को दिमाग से झटक नहीं पा रहा था, कुछ सोचते हुए माँ की जानिब देखा, जो पुरुम्मीद निगाहों से अपने बेटे को देखती मुस्कुरा रही थी। ओके मामा, जो आप चाहे, मुझे कोई एतराज़ नहीं, शादी तो करनी ही है। फिर अभी सही, आप तो खुश होंगी ना? वो भी खुद, शायद वो खुद भी इस बात से खौफजदा हो गया था कि कहीं सच में वो भी मोहब्बत ना कर बैठे। इसकी बद्दुआ सालार की ज़िंदगी को रोक ना लगा दे। और कुछ वो जल्द एतबार कर लेने वाले हल्के किरदार की लड़कियों के साथ रंग रंगलियाँ मनाते हुए शायद थक चुका था। अब किसी ख़ानदानी औरत के साथ अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहता था। आज सालार अहमद ताबेदारी की इंतहा पर था। शाइस्ता बेगम निसार होए जा रही थी। मिजाज ना हो तो ये बेटा छोटी सी बात पर भी बुरी तरह बिगड़ जाता था और शादी का नाम सुनकर ऐसे उछलता था जैसे अंगारों पर पैर रख दिया हो। वही बेटा आज माँ को इसकी खुशी देने की बात कर रहा था। दिल व जान से कुर्बान ना होती तो क्या करती। चलो फिर ठीक है, कोई लड़की पसंद तो नहीं है ना मेरे बेटे को? इन्होंने डरते डरते सवाल किया। ख्वाहिश थी कि इनका खदशा गलत साबित हो। नहीं मामा, फिक्र मत करें, मुझे भी बाकिरदार ख़ानदानी बीवी चाहिए। मैं किसी को पसंद नहीं करता, मुझे आप लोगों पर और आपके इंतखाब पर भरोसा है। सालार अहमद ने माँ के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से कहा था, जैसे जीते रहो बेटे, खुदा तुम्हें सलामत रखे मेरा प्यारा बेटा। शाइस्ता बेगम को तो जहाँ की खुशी मिल गई थी। तुम्हारे बाबा कहते हैं कि अपने दोस्त नवाब खान से बात करेंगे, इनकी बेटी बहुत प्यारी और सुलझी हुई है, शरीफ ख़ानदान की बेटी है। अब तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है तो हम वहीं तुम्हारा रिश्ता करेंगे, देखना बहुत खुश रहोगे। तुमने अपने वालिदैन को इतना मान दिया है, खुदा तुम्हें कैसे खुशी नहीं देगा। शाइस्ता बेगम बेटे को दुआओं से नवाजती गई और सालार अहमद भी माँ की इस बात पर खुश हो चुका था। माँ बाप को खुशी देकर वो खुश कैसे ना रहेगा? मगर भूल गया था, सिर्फ माँ बाप की दुआएं काम नहीं करती, बल्कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी में आसानी का बाइस बनकर हर एक की दुआओं से हकीकी खुशी नसीब हुआ करती है। खावर साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा हमारा साहबजादा अपनी खुशी से शादी के लिए मान गया है और रिश्ते के लिए भी हमें पूरा हक दिया है, जहां हम चाहें। बस लड़की शरीफ और ख़ानदानी होनी चाहिए। देखिए, हमारे बेटे का मयार भी हमारे जैसा ही है। इसको अपनी यूनिवर्सिटी की और सोशल सर्कल की लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं। शाइस्ता बेगम ने सालार की ख्वाहिश बताकर खावर अहमद को भी मुतमईन कर दिया और फिर खावर ने पहली फुर्सत में नवाब खाकान से साफ अल्फाज में बात की। तो नवाब साहब, मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे के हवाले से नवाबजादी मीरा को हमारी बेटी बना दें। खावर साहब के अंदाज पर एक पल के लिए नवाब खाकान चौंक गए, फिर मुस्कुराते हुए गोया हुए, अरे खावर साहब, मेरी बेटी आपकी भी बेटी है, मुझे क्या एतराज़ होना है? मैं फैमिली में मशवरा करके बता दूंगा। बेटी की राय लेना भी तो ज़रूरी है। नवाब खाकान ने अपनी जानिब से खावर अहमद को इत्मीनान दिलाया था। मैं शादी कर रहा हूँ और तुम लोग देखना, मैं अपनी बीवी को भी दबा कर रखूँगा। सालार अहमद चंद रोज़ में पिछली तमाम बातें मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुका था और फर्जी कॉलर झाड़ते हुए बड़ी बड़ी हाँक रहा था। अरे यार, तू बड़े बोल ना बोल, ये ख़ानदानी बीवी होती है ना, ये दो ख़ानदानों की बाहमी रजामंदी और साए में रुखसत होती है। ये बड़ी पहुँची हुई हस्ती होती है, इनमें इतनी ताकत होती है, अपने शोहर को जेर कर सकती है। ऐसा ना हो कि 2 दिन में तेरी अकल ठिकाने पर आ जाए। सालार अहमद की दोस्त वक्कास ने इसको आईना दिखाया था। सोच तो बात की 3 की भी यही थी, मगर वक्कास खासा मुंह फट किस्म का इंसान था। जो बात इसके दिल में होती वो ज़बान पर वही रखता था। ये तुम लोगों की सोच है और रन मुरीदी करने के बहाने हैं। जितना मैं इस औरत जात को जानता हूँ तुम नहीं जानते। अपनी बीवी को भी ज़्यादा अहमियत देखकर सर पर नहीं चढ़ाऊँगा। औरत को अव्वल रोज से ही हद में रखना चाहिए, तो ही वो सीधी रहती है। ये तुम मर्दों की बुज़दिलाना सोच है कि
औरत अपनी हैसियत से ज़्यादा फैल जाती है, वरना खानदानी बीवी हो या बाहर दूसरी लड़कियां सब एक ही जैसी टेढ़ी होती हैं। इनको हद में रखना चाहिए। सालार अहमद की सोच बहुत घटिया थी। वो औरत को हकीर मखलूक समझता था। यार सालार बेटे, तू भूल रहा है निकाह में बहुत बड़ी ताकत है, और ये कोई इस दूसरी लड़कियों जैसी हरगिज नहीं होगी। इसलिए इस जैसी लड़की जो मोहब्बत का राग अलापती रहेगी, मगर मजबूत रिश्ते में बंधे होने पर बीवी की निस्बत फिर भी कमज़ोर होती है। तुम मर्द ज़रूर हो, मगर इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। वक्त साबित करेगा। सैकड़ों लोगों के सामने रुखसत होकर आने वाली लड़की में क्या बात मुनफरिद होगी। वकास ने हार नहीं मानी थी। तुम लोग देख लोगे, मैं अपने अल्फाज को अमली तौर पर साबित करूंगा। सालार बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराया था। नवाबजादी मीरा को अपनी माँ की बातों से सख्त उलझन हो रही थी। माँ, मुझे शादी करने पर एतराज़ नहीं, मगर बस अच्छी तरह छानबीन कर लीजिएगा। लड़के में इंसानियत होनी चाहिए, इज्जत देना जानता हो। मुझसे हरगिज़ उम्मीद मत रखिएगा कि मैं इसकी इज्जत करूंगी या आप लोगों के फैसले को सही साबित करने के चक्कर में सारी ज़िंदगी सर झुकाकर गुजारूंगी। आसिया बेगम मुंह खोले अपनी बेटी की फरमूदात मुलाहिजा कर रही थी। अरे बेटा, ये क्या है? मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। तुम इतनी माफियाना बातें क्यों कर रही हो? वो सोच लेकर जाओगी तो घर घर नहीं बसा पाओगी। तुम्हें अपनी सोच को वुसअत देना होगी। औरत को बहुत कुछ नज़रअंदाज करना पड़ता है। आसिया बेगम अपनी बेटी की सोच पर हैरान रह गई। इन्हें नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। ये खानजादे खुद को बहुत बड़े चीज़ समझते हैं। इनकी निगाह में औरत को हैसियत से घर संभालना है और इनके बिस्तर से जाने से ज़्यादा नहीं होती। बस वो इंसान का बच्चा होना चाहिए, वरना मैं इन लड़कियों में से हर किस नहीं हूँ। मुझे तो ये कुर्बानी देनी जैसी बातें पसंद ही नहीं है। मैं 2 रोज़ में इस शख्स के हवास ठिकाने पर ले आऊँगी। बस शराबी या ज़ानी मर्द ना हो, ये बर्दाश्त नहीं करूँगी। मिरहा ने साफ अल्फाज में कहा। अपने लहजे की सख्ती की वजाहत की थी। मिरहा बेटा, वो अच्छे ख़ानदान का पढ़ा लिखा लड़का है, वो क्यों ऐसी सोच रखेगा? और तुम कोई मामूली इंसान की बेटी नहीं, नवाब खाकान की बेटी हो। वो तुम्हारी हैसियत जानता है। तुम्हें बस ये सोचना है कि अपने शौहर के अतात तुम पर फ़र्ज़ है। तुम्हें चाहे जो भी करे, तुम इसकी हर बात मानोगी और इसकी खुशी का ख्याल रखोगी। फिर देखना तुम्हारी ज़िंदगी कितनी पुरसुकून होगी। आसिया बेगम ने अपनी बेटी का सर हिलाया था। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसकी बेटी हूँ। कमज़र्फ मर्द औरत को पैर की जूती ही समझता है, और जानी या शराबी मर्द से अलहदगी का इख्तियार औरत को दिया गया है। ये नहीं कि औरत को हर सूरत अपने शौहर की इज्जत करनी है। अगर औरत दिल से खुश नहीं है तो वो अलहदगी इख्तियार कर सकती है। मुनाफ़क़त के साथ ज़िंदगी बसर करने की क्या ज़रूरत? आप अपने होने वाले दामाद को भी ये बात पहले से बता दें कि मेरे साथ अच्छे तरीके से रहेगा तो मैं भी रहूँगी, वरना भूल जाए कि इसके सामने सर झुकाकर खड़ी रहूँगी। और खुशी का ख्याल तो तब रखूँगी जब दिल से राज़ी हो जाऊँ। पहले इसके तौर तरीके और मिजाज को परखूँगी। इस काबिल हुआ तो दिल में जगह दूँगी। मैं इन लड़कियों में से नहीं हूँ जो निकाह के बाद एक ऐसी बात को दिमाग में बिठा लेती हैं कि शौहर मिजाजी खुदा होता है। इसके दिल से इज्जत और खिदमत करना फ़र्ज़ है, भले वो आपको जूते की नोक पर रखे। मिरहा ने साफ कोई से अपनी अज़ाइम भी वादा किया और आसिया बेगम सर पकड़ कर रह गई थी। मिरहा खासी मजहबी रुझान रखने वाली लड़की थी और अभी तक तो वो भी खासी खुश थी, मगर आज अपनी बेटी की सोच पर वो खौफजदा होकर रह गई, जो बसने से पहले ही ये लड़की की बातें कर रही थी। खुदा जाने इसके इस रवैये के पीछे क्या बात पोशीदा थी। शायद वो खुद भी ये शादी करने के हक में नहीं थी, या इस मामले में आसिया बेगम अपनी बेटी की को पहचान नहीं पाई थी। वो दुल्हन बनी बैठी थी, घूंघट डाले बेजार सी शक्ल लिए वो बस इस शख्स के इंतज़ार में थी जिसके बारे में इसके वालिदैन ने कसीदे पढ़ कर इसको मुतमईन करना चाहा था। किसी इंसान की हैसियत का अंदाज़ा इसकी ज़ाती तौर पर वास्ता पढ़ने से ही होता है, और यही अंदाज़ा मीरा भी खुद करना चाहती थी। और फिर इसके इंतज़ार ख़त्म हुआ। सालार अहमद कमरे में दाखिल हुआ। बहुत खुशकिस्मत लड़की हो कि तुम्हें मुझ जैसा हैंडसम और खूबसूरत शौहर मिला है, जो इतने बड़े घर और सारी जायदाद का इकलौता वारिस भी है। और इसने घूंघट उठाने से पहले ही अपनी तारीफ़ें करना शुरू कर दी थी। हालांकि इस मौके पर तो औरत को पूर तैयार होकर अपने सराहे जाने की ख्वाहिश होती है, मगर ये शख्स बिलाका खुद पसंद इंसान था जिसको अपनी ज़ात के सामने सब कमतर लगता था। हर लड़की जो काबिलियत रखती हो वो इस सब की हकदार होती है, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। सालार अहमद कदरे मजबूत लहजे में और गैर मुतवक्का किस्म का जवाब मिलने पर हैरत सी मिरहा को देख रहा था। वो आज तक अपने आगे पीछे फिरने वाली लड़कियों के मुतरिफ होने का आदी था, और कहाँ ये लड़की खुद भी खासी अनापरस्त लग रही थी। तो मौसूफ़ा के मिजाज भी खासे ऊंचे हैं, नवाबी खून का असर है। तो फिर देखते हैं मिरहा बेगम, तुम में मेरा सामना करने की कितनी हिम्मत है। मुझसे ज़्यादा अना दिखाओगी तो मत भूलो
तुम औरत हो और मैं मर्द हूँ, लम्हों में तुम्हारी ज़ात का गरूर तोड़ मरोड़ कर रख दूंगा। सालार अहमद दिल में मीरा से मुखातिब होते अपने कदम रोक चुका था। मैं थका हुआ हूँ, सोना चाहता हूँ। इसने सोफे की जानिब कदम बढ़ा दिए थे। अब ज़रूर तुम्हें बुरा लगेगा जो जवाब नहीं दे पाओगी। सालार अहमद दिल में कमीनगी से खुशी महसूस कर रहा था। जी हाँ, मुझे भी चेंज करना है, बहुत थक गई हूँ, जल्दी सोने की आती हूँ। ये फजूल रस्में सर झुकाकर बैठे रहो, मिरा ने निहायत बेजार लहजे में जवाब देकर सालार अहमद को एक बार फिर चौंकने पर मजबूर कर दिया था। मिरा के चले जाने के बाद वो सर झटक कर सोने के लिए चला गया। अगली सुबह देर से सालार की आंख खुली थी। घड़ी की जानिब देखा तो 9 बज रही थी। इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, वहाँ और कोई नहीं था। सालार अहमद तेजी से बिस्तर छोड़कर उठा और वॉशरूम में जा घुसा। फ्रेश होकर बैग पैक किया और कमरे से बाहर निकला। सालार बेटा कहाँ जा रहे हो? शाइस्ता बेगम ने नक्सक से तैयार बेटे को बैग उठाए देखा तो पूछ लिया। मामा, यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। आपको पता तो है मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। आपकी वाइफ पर शादी कर ली है, बीवी के लिए घर पर तो नहीं बैठ सकता ना। सालार अहमद अपनी माँ के पूछने पर खुश होता। सोच रहा था अब मामा के जरिए इस नक्चड़ी मोहतरमा तक ये बात पहुँच जाएगी। अरे बेटा, आज का दिन तो रुक जाओ, कल वलीमा है, इसके बाद चले जाना। शाइस्ता बेगम ने बेटे की अकल पर मातम किया। मगर इसी वक्त सालार की नज़र सामने पोर्च में खड़ी नई गाड़ी पर पड़ी मुहामिरा थी जो कहीं जाने को तैयार गाड़ी में बैठ रही थी। इसके हर अंदाज में लापरवाही थी। बजाय मुझे नाश्ता वगैरह पूछने की या मुझे जगाना कि ये मुंह उठाकर बिना किसी से पूछे कहीं जाने की तैयारी में है। इसके अंदाज पर सालार अहमद गुस्से से मुर्कियां भींचते हुए पैर पटक कर माँ के कमरे की जानिब चल दिया। मामा, ये लड़की कहाँ जा रही है, आपसे पूछा है? सालार अहमद के अचानक पुकारने पर शाइस्ता बेगम पलटी थी। लड़की नहीं, तुम्हारी बीवी है, और ये तो तुम्हें इससे पूछना चाहिए ना कि वो कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है। शाइस्ता बेगम ने हंसते हुए बेटे को उकसाया था। वो चाहती थी वो खुद ही अपनी बीवी से बातचीत करे, मैं क्यों पूछूं? सालार अहमद ने लापरवाही से कंधे उचकाई। यूनिवर्सिटी चला गया, मगर इसका दिमाग कहीं भी फोकस नहीं कर पा रहा था। इसको रह रहकर मिरा का ख्याल आ रहा था। मैं कैसा मर्द हूँ कि मुझे अपनी बीवी के बारे में ये तक नहीं पता कि वो इस वक्त कहाँ होगी, और वो खुद को ये सोचने से बाज नहीं रख सका तो थककर मोबाइल निकाला और कॉल मिला ली। मामा, आपने पूछा था वो कहाँ गई है? उसने अपनी माँ से पूछा। नहीं बेटा, अभी तक तो वो आई नहीं, और वो तुम्हारी बीवी है, तुम मुझसे खुद पूछ सकते हो। लेकिन मामा, मेरे पास उसका नंबर नहीं है। उसकी माँ को हैरत हुई। अच्छा, मैं तुम्हें उसका नंबर सेंड करती हूँ, तुम खुद ही उससे पूछ लो। वो चाहती थी कि दोनों के दरमियान ये दुनिया बढ़ ना जाए और सालार खुद उससे सब कुछ पूछे, उससे बातचीत करे, अपने ताल्लुक को बेहतर करे। वो जानती थी कि मीरा कोई मामूली लड़की नहीं थी, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट नवाब की बेटी थी, और इनकी तरफ से किसी किस्म की कोताही होने पर वो सवालों जवाब भी कर सकते थे। मामला ज़्यादा बिगड़ जाए ऐसा शाइस्ता बेगम और ख़ुद खाबर अहमद साहब भी नहीं चाहते थे। मगर तब सालार ने भी अपनी माँ को बहुत मुतमईन अंदाज में खुद रिश्ता तलाश करने और शादी की इजाज़त दी थी। मगर आज इसका रवैया शाइस्ता बेगम को परेशान कर रहा था। खुदा करे जैसे मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी ना हो, सब ठीक हो जाए। शाइस्ता बेगम ने दिल से दुआ की थी और सालार को मिरा का नंबर सेंड किया। नंबर मिलते ही सालार ने मिरा को कॉल की, मगर मुसलसल बेल जाती रही और कॉल रिसीव नहीं हुई थी। गुस्से से तिल मिलाते हुए सालार ने कॉल अटेंड की और मैसेज टाइप किया। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मेरी कॉल पिक क्यों नहीं कर रही? सालार ने मैसेज सेंड किया, दोबारा से कॉल मिलाई। अब की बार दूसरी बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया गया। तुम कहाँ हो? सालार ने रोबदार लहजे में इस्तफसार किया था। मुझे शॉपिंग करना थी और अपने काम निपटाने थे, इसीलिए इस वक्त मार्केट में हूँ। मिरा ने कमाली बेनियाजी से जवाब दिया था। किससे पूछकर तुम घर से निकली थी? तुम भूल गई हो कि अब तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा शौहर भी है। सालार मज़ीद गुस्सा हो गया था। मुझे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, आप मेरे मालिक नहीं, मेरे शौहर हैं, और शौहर बनकर नहीं। अगर आपको ज़्यादा फिक्र थी तो मेरे साथ चले जाते, मुझे कोई एतराज़ नहीं था। मीरा ने इसके गुस्से को खातिर में ना लाते हुए कहा, मैं इतना फारिग नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ आगे पीछे फिरता फिरूँ। अगली बार घर से निकलने से पहले मामा को इन्फॉर्म करके जाना। मीरा ने कोई बहस करने किए बिना ओके कहा और कॉल एंड कर दी, और मोबाइल को घूर कर रह गया था। तुम तो कहते थे कि तुम अपनी बीवी को दबा कर रखोगे, मगर यहाँ तो लगता है मामला उलट हो गया है। तुम्हारी बीवी तुम्हें नज़रअंदाज कर रही है, या शायद वो तुम्हें दबा रही है। क्या कहा था हमने कि निकाह के बाद
लड़की ताकतवर हो जाती है क्योंकि इसके पीछे 2 ख़ानदानों की सपोर्ट होती है। मगर तुम हमारी बात मानने को तैयार ही न थे। जाने कब वक्कास दबे पाँव इसके पीछे आन खड़ा हुआ था और इसने इनके फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनकर इस पर तंज किया था। इसकी इतनी ज़रूरत नहीं कि सालार अहमद को नज़रअंदाज करे, बस नखरे दिखा रही है। तुम्हें पता है ये लड़कियों के चोचले होते हैं अपनी जानिब मुतवज्जा करने के, और मैं इसीलिए इसके साथ रियायत बरत रहा हूँ कि अभी हमारी शादी को सिर्फ एक ही दिन हुआ है। तुम शायद भूल रहे हो, औरत मर्द से ताकतवर कभी नहीं हो सकती। मैं इसके नखरों से पिघलने वाला नहीं हूँ। देखना 2 रोज़ में ही मैं कैसे इसको अपना दीवाना बनाता हूँ। सालार अहमद ने मजबूत लहजे में अपनी अना का परचम बुलंद किया था, मगर दिल में वो खुद भी मिराह के इस लापरवाही अंदाज पर बुरी तरह से तिलमिलाया हुआ था। आज डिनर पर चलते हैं, तैयार हो जाओ, मैं मामा को बता कर आता हूँ। सालार अहमद ने बड़े खुशकुन अंदाज में मिराह को साथ चलने का कहा और कमरे से बाहर चला गया। मिराह पहले तो हैरत से अपने बदमिजाज और मगरूर शौहर को देखा, फिर सर झटक कर तैयार होने लगी। थोड़ी देर में वो लोग एक मारूफ होटल के सामने मौजूद थे। सालार अहमद की आंखों में एक अलग की चमक थी, कुछ कर दिखाने की लगन। होटल में जाकर एक रिजर्व केबल की जानिब बढ़े जो एक कोने में थी। मिराह बाबा खर अंदाज में चलती हुई एक चेयर पर बैठ चुकी थी। इसके नवाबों वाले अंदाज देखकर सालार ने बमुश्किल अपने चेहरे पर डराने वाली पुरस्कार मुस्कुराहट को छुपाया था। इस वक्त एक निहायत चुस्त लिबास में मलबूस तरहदार हसीना इनके करीब पहुंची और बेतकल्लुफ अंदाज में सालार के गले में बाहें डालकर गर्मजोशी से बोली, हाय सालार, तुम कहाँ गायब थे? इतने दिन से नज़र ही नहीं आए। जानते हो कितना मिस कर रही थी मैं तुम्हें। हाय हिना, बस कुछ मसरूफ़ था। सालार ने नॉर्मल सा अंदाज अपनाया। मेरे लिए एक दिन तुम्हें देखना ना गुजारना मुश्किल हो जाता है और तुम पिछले कई रोज से कांटेक्ट ही नहीं कर रही। ऐसी भी क्या मसरूफियत थी? वो बड़े लाड से कहती मुंह बसो रही थी और सालार अहमद पसायन मुतमईन सा हुए कनखियों से मिराह के चेहरे के तासुरात जांच रहा था, जिनका चेहरा पल में सुर्ख हुआ था। इसे ये नज़ारा बहुत बुरा लगा था। वो एक झटके से खड़ी हुई और बाहर की जानिब बढ़ गई और सालार अहमद मसरूर सा इस लड़की के हाथ में चंद नोट थमा कर इसके पीछे लपका। सालार ने हिना को पैसे देकर बतौर ख़ास मिराह को जेलिस करने के लिए हायर किया था, मगर मिराह ये बात नहीं जानती थी। क्या हुआ, तुम बाहर क्यों चली आई? हम डिनर करने के लिए आए थे ना। क्या इस लड़की से जेलिस हो गई हो? वो बस यूं ही फैलो है, मुझे देखा तो मिलने चली आई। सालार इसके चेहरे के बदलते रंगों से महसूस हो रहा था जेलिस, और मैं आपको गलत फहमी हुई है। मैं आपको लापरवाह समझ रही थी, मगर आप इतने बिगड़े हुए और बदकिरदार हैं ये मैंने सोचा भी नहीं था। मीरा ने बिगड़े हुए लहजे में कहा, इतना तुम नाराज़? अच्छा तुम नाराज़ मत हो, वो कॉलेज के ज़माने से मुझ पर फिदा है, तो जब कहीं देख ले तो ऐसा ही करती है। क्या करूँ, तुमने मुझे अभी जाना नहीं है ना। मुझ जैसे हसीन मर्दों के पीछे लड़कियाँ पागलों की तरह चकराती रहती हैं। तुम जानती तो वो आजकल की लड़कियाँ किस मिजाज की हैं, पागल होती हैं। सालार ने जताने के अंदाज से मीरा की जानिब देखा। ये सिर्फ लड़की का ही कसूर नहीं, तुमने इसको कोई उम्मीद दिलाई होगी, तभी तो वो इतनी फ्री हो रही थी। अगर मर्द चाहे तो अपनी तरफ पढ़ने वाली लड़की को इसकी हद में रख सकता है। तुमने इसको हद में नहीं रखा, शायद भूल रहे हो। अब तुम शादीशुदा हो, इस किस्म की ओछी हरकतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मिराह ने इसकी एक न सुनी थी और अपनी नापसंदीदगी का इजहार किया था। रात को इस लड़की हिना की कॉल आई तो सालार ने भी कॉल पिक कर ली थी। मैं हिना बात कर रही हूँ। दूसरी जानिब लड़की ने अपना तारुफ करवाया था। तुमने मेरा नंबर कहाँ से लिया? सालार मशकूक हुआ था। अरे जब मैं आप तक पहुंचकर आपकी मदद कर सकती हूँ तो फिर नंबर लेना कौन सा मुश्किल काम है। वक्कास से लिया था, घबराए नहीं। हिना खिलखिलाकर हंसी थी। बोलो क्यों फ़ोन किया तुमने? सालार ने बेजार सूरत बनाई थी। क्या आपकी बीवी ने कोई असर लिया? हिना का अंदाज खोजने वाला था, मगर सालार अपनी फिक्र में ध्यान ही नहीं दिया था। नहीं, वो ज़्यादा ही मगरूर है, बुरा लगा है, मगर जाहिर नहीं कर रही। अभी तक खामोश है। सालार ने एक अनजान लड़की से अपनी परेशानी शेयर की थी। मेरे पास एक और रास्ता है, अगर चाहें तो मैं मदद कर सकती हूँ। हिना ने मुफ्त मशवरे से नवाजा था। सालार अहमद मुकम्मल तौर पर मुतवज्जा हुआ। आप ऐसा करें, कल रात को होटल में एक कमरे की में आ जाए। मैं एक औरत की हैसियत से आपको यकीन दिलाती हूँ, अब आपकी बीवी मजीद खामोश नहीं रह पाएगी, ज़रूर कोई पेशकदमी करेगी। हिना ने एक अदा से कहा था, ठीक है, मैं कल सब कुछ फाइनल करता हूँ, डील डन करो। बदले में तुम्हें क्या चाहिए? सालार अहमद ने बिना सोचे समझे मंसूबे पर अमल करने की हामी भरी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी मदद हो जाएगी और मुझे भी जो मिल जाएगा वही बहुत है। हिना ने मायने फेज अंदाज अपनाया तो सालार अहमद का कहका बुलंद हुआ।
सालार यूनिवर्सिटी से सीधा घर लौट आया था। इस वक्त इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत थी। आज वो हर हाल में कामयाब होना चाहता था। इसके दिमाग में यही बात समा चुकी थी, किस तरह मीरा को ज़ेर करना है। वो अच्छी तरह जानता था एक औरत कभी अपनी मौजूदगी में शौहर को दूसरी औरत की जानिब माइल होता बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसकी हर मुमकिन कोशिश थी कि किसी भी तरह अपने शौहर को अपनी ज़ात तक महदूद कर ले, पर मीरा कैसे इस चाल से खुद को बचा पाएगी। वो मसरूर सा था। रूम बुक करवा के हिना को वक्त और एड्रेस सेंड किया और ख़ुद भी फ्रेश होकर मगन से अंदाज में तैयारी करने लगा। इसके हर अंदाज से शोखी छलक रही थी। सीटी के अंदाज से होंठ सुकेट कर बालों को जेल की तरह जमाया खुद को सताइशी अंदाज में देख रहा था। सुर्खों सफ़ेद रंगत पर ब्राउन खद्दर का कुर्ता शलवार, इस पर हमरंग वास्किट पहने वो किसी भी लड़की के दिल को बेचैन करने को काफ़ी था। बाल बनाकर हैंड वॉच पहनी, बेदरीक परफ्यूम स्प्रे करता मीरा को भी टटकने पर मजबूर कर गया। कुछ तो था इसके अंदाज में कि वो आज इतने दिल से तैयार हुआ था। खुशबू में नहाया सालार अहमद खासा वजी लग रहा था। गाड़ी में बैठते हुए इसने चंद लम्हे पहले मिरहा का मुतवज्जा होना याद किया था। तो तुम दिल के हाथों मजबूर हो चुकी हो मिरहा बेगम। पूरा यकीन है कल तुम खुद मुझसे कहोगी कि तुम मेरी बीवी हो, तो मुझे किसी दूसरी औरत से राब्ता नहीं रखना चाहिए। सालार अहमद तेज़ी से गाड़ी भगा ले गया था और मिरहा की आंखें तेज़ी से भीगने लगी थी। वो कभी भी ऐसी ज़िंदगी और इस किरदार का जीवन साथी नहीं चाहती थी। आज सालार अहमद की तैयारी ने मिरहा को बहुत कुछ समझा दिया था, मगर कोई ठोस सबूत नहीं था जिसकी बिना पर वो कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करती। सो खुद को लापरवाह ज़ाहिर करती अपना वरम कायम रखते हुए थी। आप अपनी बीवी की अकड़ निकालने के लिए किस हद तक जा सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। इन्होंने दिलरुबा अंदाज से सालार को इशारा दिया था। इससे मिरहा को क्या फ़र्क पड़ेगा, वो तो जानती तक नहीं कि मैं इस वक्त यहाँ पर तुम्हारे साथ मौजूद हूँ। सालार ने हिना को घूरा था। यही तो कह रही हूँ, आप कैमरे की मदद से यहाँ पर सब कुछ रिकॉर्ड कर लें और कल अपना सेलफोन बीवी के सामने रख देना। किसी काम के बहाने कोई तस्वीर या वीडियो ओपन करके सेलफोन छोड़ देना और वहाँ से हट जाना। बीवियों वाली शक की आदत से मजबूर होकर आपकी बीवी सेलफोन को देखेगी और सब कुछ जान जाएगी। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काम भी हो जाएगा। इन्होंने जैसे हर मसला चुटकियों में उड़ाया था। तुम्हें इस तरह मेरी मदद करके क्या हासिल होगा? सालार इसके चेहरे को बगौर जांच रहा था। मुझे आपका कुर्ब नसीब होगा और क्या चाहिए। हम जैसे छोटे घर की लड़कियों को आप जैसे शख्स की हमराही उम्र भर के लिए तो नहीं नसीब हो सकती। कहाँ आप और कहाँ हम, मगर चलो चंद हसीन लम्हात मुयस्सर आ जाएं तो भी किसी नेमत से कम नहीं होंगे। हिना ने मासूम सूरत बनाई थी और सालार जैसे बदफितरत और ख़ुद पसंद शख्स के लिए मज़ीद कोई सवाल करना अहम ना रहा था। जो सोच इसकी थी, सामने खड़ी लड़की इस सोच के साथ इस पर अपना आप लुटाने को तैयार थी। और अंधा क्या चाहे दो आँखें के मिसदाक वो भी मुस्कुरा कर इसकी जानिब देख रहा था। काफ़ी समझदार लग रही वो। चलो क्या याद रखो कि तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देता हूँ और अपना मतलब भी निकाल लूँगा। मीरा की बेबसी को सोच सोच कर वो बड़े जानदार अंदाज में मुस्कुराया था और आधी रात के वक्त खामोशी से घर वापस लौट गया। दबे कदमों चलते कमरे में दाखिल हुआ। फ्रेश होकर मुतमईन सा बिस्तर पर दराज हो चुका था। ये जाने बगैर अगली सुबह अपने साथ कितना बड़ा तूफान लाने वाली थी। सालार का फ़ोन मुसलसल बज रहा था। कुछ देर तो मिरहा ने नज़रअंदाज करना चाहा, मगर फिर ये सोच कर कि कहीं कोई इमरजेंसी कॉल ना हो, मिरहा ने सालार को जगाने का इरादा किया। सालार उठ जाए, वो बेड के करीब खड़ी आवाज़ दे रही थी, मगर वो खासी गहरी नींद में था। हिलकर भी नहीं दे रहा था। मिरहा मजबूरन आगे बढ़कर इसको कंधे से पकड़कर हिलाया। सालार उठ जाए। सालार ने मुंदी मुंदी आंखों से इसकी जानिब देखा, मगर फिर एक झटके से उठकर बैठ गया। एक ही रात में कैसी काया पलटी है कि मेरी बीवी मुझे इतने प्यार से जगा रही है, यानी मेरा मंसूबा कामयाब हो चुका है। सालार ने चमकती आंखों से मिरहा की जानिब देखा और वो मुसलसल पुकारने के बाद अब आजिज हो चुकी थी। इसके आंखों के सामने हाथ लहरा कर इसे मुतवज्जा किया। आपका फ़ोन कब से बज रहा है? आप जाग ही नहीं रहे, देख लें कहीं कोई ज़रूरी कॉल ना हो। मिरहा ने जगाने की वजह बताई तो अभी तक नींद में बैठा सालार मुकम्मल तौर पर बेदार हुआ था। मोबाइल उठाकर देखा तो अपने प्राय तकरीबन हर एक की कॉल्स थी। घबरा कर दोबारा से कॉल अटेंड किया था। सालार, तुम इतने बिगड़े हुए हो कि अपनी मस्तियों की खातिर पूरे ख़ानदान की इज्जत दाव पर लगा दी। कुछ एहसास है तुम्हारी इस बेहुदा हरकत की वजह से हमें कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। सुबह से 100 लोगों ने कॉल करके मुझे हलकान कर दिया है। किस किस को सफाई दूँ और क्या कहूँगा। हावर अहमद का कॉल अटेंड करते हुए ही गुस्से से धाड़े थे। बाबा, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि आप मुझ पर इतना बिगड़ रहे हैं? क्या हुआ है, कुछ बताएं तो सही। सालार हैरत से सब कुछ सुनकर बोल उठा, अभी मैं बताऊं तुम्हें कि तुमने क्या किया है। देखो ज़रा, सोशल मीडिया तुम्हारे करतूतों की स्याही से भरा पड़ा है। नवाब खावान भी गुस्से में जाने क्या कर डाले तुमने, हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कल रात
کہاں تھے تم؟ بتاؤ۔ خابر احمد کا بس نہیں چل رہا تھا، کوئی جادو کی چھڑی گھما کر یا کوئی خود کو غائب کر ڈالے یا اپنے اس نکمے بیٹے کوئی اس کی ہر غلط کام کے ساتھ غائب کر دیتے۔ سالار گزشتہ رات کے سوال پر پوری طرح سے چونک گیا تھا، تیزی سے کال اٹینڈ کر کے سوشل میڈیا پر گیا تو اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا تھا۔ وہاں سالار احمد کی اینا کے ساتھ انتہائی نازیبا تصاویر ہر طرف وائرل ہو چکی تھی۔ یہ تصاویر تو سالار نے اپنے موبائل کی مدد سے مرحا کو جلانے کی خاطر لی تھی۔ پھر یہ سب اچانک کچھ خیال آنے پر سالار نے ایک نمبر ڈائل کیا، مگر مسلسل کال جاتی رہی اور جواب موصول نہیں ہوا۔ اب سالار کو صحیح معنوں میں پریشانی لاحق ہوئی تھی۔ ام حسن کو کال کی تو اس نے پہلے ہی بیل پر کال ریسیو کی تھی۔ یہ کیا ہے سالار؟ تم نے تو صرف بھابھی کے سامنے اینا کو ملنا تھا، تم نے اپنے ماضی کے معاملات ترک نہیں کیے تھے۔ حسن نے چھوٹتے ہی سوال کی اور گال کر دی تھی۔ مجھے بکواس کرنے دو گے؟ میں نے کسی وجہ سے فون کیا ہے۔ سالار نے بمشکل خود پر قابو پایا تھا، وہ میرا تک یہ بات پہنچنے نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہاں کہو۔ حسن نے اپنی زبان کو بریک لگائی۔ ہینا کون ہے؟ تم لوگ اس کو کیسے جانتے ہو؟ مجھے کچھ بتاؤ۔ سالار ہینا کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین تھا، وہ تو کچھ وقت پہلے ہی یونیورسٹی میں آئی تھی، ہم بھی اس کے نام اور نمبر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ حسن نے اس کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ یہ بات تم پہلے نہیں بتا سکتے تھے؟ سالار نے دانت کچکچائے۔ تم بھی روم میں پرائیویٹ ملاقات کا نہیں بتایا تھا، اگر بتا دیتے تو تمہیں آگاہ کر دیتا کہ وہ انجان لڑکی ہے۔ حسن کو اس کا اپنی غلطی پر دوسرے کو قصوروار ٹھہرانا برا لگا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، میں یہ سب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس چالاک لڑکی نے مجھے اپنی باتوں میں الجھا لیا تھا۔ میں مرحا کو نیچا دکھانے کے چکروں میں کسی بات کو سمجھنے کے قابل ہی نہیں رہا۔ اگر اس کی بارے میں اس کو کچھ بھی پتہ چلا تو مرنا نصیحت کرنے کے لیے فون مت کرنا۔ سالار نے غصے سے کال اینڈ کی اور 2-3 بار دوبارہ اس شاطر لڑکی کو کال کر چکا تھا، مگر کوئی رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ سالار سر تھام کر بیٹھ گیا اور اس سے پہلے کوئی حل تلاش کرتا ایک اور 9 نمبر سے کال آئی۔ سالار نے جلدی سے فون کان سے لگایا تو کسی اور لڑکی کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اس کے لاشعور میں محفوظ تھی۔ گھر میں ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، ہر کوئی ایک دوسرے سے نظر چرا رہا تھا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی، خاور صاحب نے بہت کوشش کر کے ممکنہ طور پر سوشل میڈیا سے یہ تصاویر مٹانے کی تقدو کی تھی، مگر یہ کسی نیوز کی خبر کی طرح تھی کہ سینئرز کو کال کر کے ہٹا دی جاتی۔ سوشل میڈیا پر پھیلی جانے والی خبر کسی وائرس کی مانند تیزی سے ہر کسی کو اپنے لپیٹ میں لیتی ہے اور اپنی مدت پوری کر کے ہی جان چھوڑتی ہے۔ ابھی تک یہ تصاویر مزید شیئر ہو رہی تھی اور خاور صاحب گھر میں بیٹھے شائستہ بیگم پر پھڑک رہے تھے۔ یہ سب آپ کی غلطی ہے، آپ نے کبھی اپنے بیٹے پر توجہ ہی نہیں دی۔ وہ کہتا تھا کہ کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے جا رہا ہے تو آپ مان لیتی تھی، کبھی کوشش نہیں کی کہ پتہ کروا لیتی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا نہیں۔ مائیں تو اپنے بچوں کی چال ڈھال سے ہی ان کو پہچان لیتی ہیں کہ وہ کس مزاج کے ہیں، لیکن نہیں، آپ کا کہنا تھا کہ میرا بیٹا بہت قابل ہے، تھوڑا سا بگڑا ہوا ہے، غلط راستے پر نہ چل پڑے، اس کو سدھارنے کے لیے شادی کر دیتے ہیں۔ یہ آسان حل ہوتا ہے، ماؤں کے پاس اولاد کو بگاڑ کر دوسرے کی بیٹی کی سر ذمہ داری ڈال دینا کہ یہ لو جی ہم نے تو لاڈ پیار دیا تھا، تھوڑا سا بگڑ گیا ہے، اب خود سدھار لینا۔ صاف کیوں نہیں بتایا کہ کس کمپنی میں اٹھتا بیٹھتا ہے اور کون سا کاموں میں ملوث ہے؟ خاور صاحب سارا ملبہ اپنی بیگم پر ڈال رہے تھے۔ ارے میں کیا کرتی، جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اس کو تربیت بھی دی اور سدھارنے کی کوشش بھی کی۔ آپ بھی تو باپ تھے گھر سے باہر، تو ان پر کڑی نگاہ رکھنے کی ذمہ داری آپ پر بنتی ہے۔ آپ نے کبھی اس کی ذمہ داری محسوس نہیں کی؟ اولاد کی تربیت صرف ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی، باپ کا بھی حق ہوتا ہے اولاد پر کڑی نگاہ رکھنے اور برا بھلا کہنے کا، مگر آپ اپنے کاروبار میں اس قدر مصروف تھے کہ آپ کو اکلوتے بیٹے کو دینے کے لیے وقت میسر نہیں تھا۔ تربیت کیا کرتے، اب ساری غلطی مجھ پر نہیں ڈال سکتے۔ میں نے آپ سے کئی بار کہا کہ اپنے بیٹے پر توجہ دیں، منہ بگڑ رہا ہے، میری بات نہیں مانتا، ضدی ہوتا جا رہا ہے، مگر آپ نے میری بات کو سنجیدگی سے لیا ہی نہیں۔ اب پچھتانا ہم دونوں کا نصیب بن چکا ہے۔ شائستہ بیگم بری طرح بوکھلا گئی تھی اور خاور احمد آج حقیقتاً پچھتا رہے تھے۔ آج کاروبار کے لحاظ سے تو اس قابل ہو چکے تھے، جانے مانے صنعت کاروں میں ان کا نام بھی شامل تھا، مگر جس لیے اتنی محنت کی وہ ہاتھ سے نکل چکا تھا، اور ان حالات کو قابو کیسے کرنا ہے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سالار احمد نے سارا دن کمرے میں چھپ کر گزار دیا، مگر رات ہوتے ہی ان کو نئی فکر ستانے لگی۔ بیٹھ کے دوسرے کنارے پر موجود مرحا کو دیکھتے وہ سوچ رہا تھا، اب یہ فاصلے ہر صورت ختم ہو جانے چاہیے۔ میں مزید کوئی چال چلنے کی بجائے اس سے اپنا حق وصول کر لوں تو بھی یہ میرے سامنے کمزور پڑ جائے گی اور یہ میری مردانگی کے لیے باعث فخر ہوگا، اور کس طرح زیر کرنا چاہتا ہوں میں اپنی بیوی کو جس پر میں پورا حق رکھتا ہوں۔ سالار احمد خود کو مضبوط دلائل دیتے ہوئے اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی خاطر مرحا کے قریب ہوا تھا، مگر وہ گہری نیند میں بھی حاضر دماغ تھی۔ فوراً دور ہو کر اٹھ بیٹھی، ماتھے پر گہری شکن اس
बात की खमास थी कि इसको ये हरकत किस कदर नागवार गुजरी है। ये क्या हरकत है मिरहा? तुम मेरी बीवी हो और शरई और कानूनी तौर पर तुम पर पूरा हक रखता हूँ। तुम मुझे मेरे हक से महरूम नहीं कर सकती। सालार को मिरहा का गुरेज अच्छा नहीं लगा था। कौन सा हक, कैसा हक? मेरे नज़दीक औरत के हकूक भी इतने ही अहम हैं जितने कि मर्द के आप हैं, और आपने मेरे हकूक को पहले रोज़ से ही पामाल किया है। तो मुझसे ये उम्मीद क्यों है कि मैं आपके हकूक की अदायगी को अहमियत दूंगी? मिरहा नागवारी से सालार की जानिब देख रही थी। तुम मुझे अकड़ दिखा रही हो तो मैं भी पेशकदमी करना मुनासिब नहीं समझा। सालार जज्बजुज़ हुआ था। आपने कमरे में दाखिल होते ही सलाम दुआ भी नहीं की, मेरा तारुफ भी नहीं मांगा। बस अपना तारुफ बड़े मगरूर अंदाज में करवाया था और मेरी खुशकिस्मती पर बात की थी कि आप का मिलना मेरी खुशकिस्मती है। आपकी नज़र में मेरी क्या हैसियत है? मैं कोई गिरी पड़ी लड़की तो नहीं थी जिसको आपने कमतन होने का एहसास दिलाया था। इसके बाद मैं क्या रद्द-ए-अमल देती? मैंने वही किया जो मुझे सही लगा। मगर आप मज़ीद अकड़ अकड़ गए थे तो आज अपना हक मांगने किस मुंह से चले आए हैं? मैं खामोश हूँ तो मुझे मत उकसाएं कि बड़ों तक बात चली जाए। पहले इज्जत देना सीखे, इतनी इज्जत जितनी आप चाहते हैं कि मैं आपकी करूँ। इसके बाद हकूक की बात करेंगे। मिरहा ने सफाई से अपना मौक़िफ़ सालार के सामने रखा था। तुम झूठ बोल रही हो ज़रूर। तुम अपने फियांसी को दिल में बसाए बैठी हो, इसीलिए मुझसे दूर रहती हो। क्या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत था? सालार ने मुश्किल अपने चेहरे पर सजे फिक्र के तासुरात छुपाए थे। मैंने अपने फियांसी को एक नज़र नहीं देखा था और ना ही मैंने ज़ाहिरी खूबसूरती से कभी कशिश महसूस की है। मुझे सबसे खूबसूरत वो शख्स लगता है जिसका बातिन शफाफ हो और खूबसूरत हो, जिसका किरदार और अखलाक आला हो। आपके पास तो शायद इनमें से कोई खसूसियत भी ना हो। मिरहा ने आखिरी जुमला दिल में सोचा था। मैं नहीं मानता तुम खुद को बचाने के लिए बोदे दलाइल पेश कर रही हो और कुछ नहीं। सालार अहमद बुरी तरह चिढ़कर रह गया था। शायद लाशौरी तौर पर वो मिरहा के चले जाने की हर राह मसदूद कर देना चाहता था, मगर वो किसी तौर काबू में नहीं आ रही थी। आप जो चाहें समझे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझसे दूर रहें, बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मिरहा ने सालार अहमद को इसकी हद बताई थी जो दूसरों को इनकी हद बताता था। जो अपने सामने सबको कमतर समझता था, वह हक्का बक्का मुँह खोले अपनी बीबी को देख रहा था जो बदमज़ा होती बेड से उठकर और ब्लैंकेट निकालकर सोफे पर जाकर बैठ चुकी थी। अब किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, ना ही वो किसी धमकी से खौफजदा हो रही थी। और सालार के चेहरे पर परेशानी छाई हुई थी। अभी तो नवाब खाकान दुबई गए हुए थे। अगर जो वो वापस आए और मेरे बारे में सब कुछ जान गए तो क्या होगा? क्या फिर वो अपनी बेटी को यहाँ पर रहने देंगे? क्या मीरा ये सब जानकर मुझे माफ़ कर देगी? अगर इसके बरक्स हुआ तो सालार अहमद इसके आगे सोचने की खुद में हिम्मत नहीं रखता था। जिस बात से वो खौफजदा था, शायद वो अपनी बीवी के हवाले से इन्हीं जज्बात का शिकार हो चुका था, मगर इस बात को नज़रअंदाज कर रहा था। मीरा को अपने सामने झुकाने की कोशिश में ना चाहते हुए भी हर वक्त इसी के बारे में सोच रहा था, इसको जानने की कोशिश कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, निकाह में वाकई कशिश होती है। इसके दिल में ना ही पहले से कोई लड़की मौजूद थी, ना ही मिरहा से इसकी को किसी किस्म की ज़ाती पुरखाश थी। बस एक ज़िद थी कि बीवी के सामने झुककर नहीं रहूँगा। जबकि मिरहा मजबूत किरदार की मालिक थी, सालार की हर कोशिश को नाकाम कर रही थी, जिससे वो मज़ीद पिपर रहा था। और इस ज़िद में कब वो दिल हार बैठा नहीं जानता था। आज ये खदशा हुआ कि शायद सालार की सच्चाई जानकर इसको रद्द कर दिया जाए तो इससे बर्दाश्त नहीं होगा। क्या हाल है सालार अहमद? अब कैसा महसूस कर रहे हैं? मनाल की आवाज़ में फातिहाना खनक थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे रब्ता करने की? अरे इतना गुस्सा क्यों करते हो? मैं तुम्हारी खैरियत जानने के लिए फ़ोन किया है। मनाल इसकी हालत से महसूस हो रही थी। क्यों, मुझे क्या हुआ है? क्यों तुम मेरी खैरियत पूछ रही हो? सालार ने अपने लहजे को नॉर्मल रखने की कोशिश की थी। तुम्हारी इतनी बदनामी हो रही है और तुम यकीनन हिना को भी तलाश कर रहे हो, मगर वो जाने कहाँ गुम हो चुकी है ना? सालार, इसका लहजा कुछ सिताता हुआ था। तुम मीना को कैसे जानती हो? सालार का गम और गुस्से से बुरा हाल था। मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ। तुम तो खुद को बहुत अक्लमंद और आला चीज़ समझते थे, एक लड़की के इशारों पर कैसे नाचते चले गए। क्या इतने कमज़ोर हो चुके हो कि अपनी बीवी को दबाने के लिए तुम्हें किसी अनजान लड़की की ज़रूरत पेश आई? कितनी बुरी बात है कि वो लड़की भी तुम्हारी मदद के बहाने तुम्हें पूरी दुनिया में रुसवा करके चली गई। अब इससे कैसे बदला लोगे? मैं बताऊं, इसको मकाफाते अमल कहते हैं मिस्टर सालार अहमद। और वो लड़की हिना, इसको मैंने ये तुम्हारे पास भेजा था क्योंकि मुझे तुमसे अपनी ज़िल्लत और रुसवाई का बदला लेना था। मैंने तुमसे बहुत कहा था कि मेरे साथ इस तरह मत करो, मगर तुम संदिली की इंतहा कर दी थी। अब अपनी रुसवाई का मजा लो और महसूस करो कि हर वो लड़की जिसे तुमने बेबस करके अपने जाल में फंसाया और अपनी रातों को रंगीन करके किसी फालतू पुरसे की मानिंद अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकर इस दवाई का तो गले में लिए सपने कैसे दुनिया वालों का सामना किया होगा और हर एक की हकारत आमेज़ बातों और निगाहों को अपनी ज़ात पर झेला है।
منال کے لہجے میں نمی گھلی ہوئی تھی۔ بکواس بند کرو، میں نے تم لوگوں میں سے کسی کو بھی خود تک آنے کے لیے مجبور نہیں کیا تھا اور نہ ہی جھوٹے وعدے کیے تھے۔ بس محبت کی داستانیں سننے میں تم لوگوں کو کبھی ٹوکا نہیں تھا اور نہ ہی تمہیں کوئی حد بتائی تھی۔ اس کے بعد میری خاموشی کا تم سب لڑکیوں نے اپنی مرضی سے مطلب اخذ کر لیا اور میرے ساتھ اپنی محبت کا ثابت کرنے کے لیے اپنا آپ پوری خوشی اور رضامندی سے مجھے سونپا تھا، تو اس میں بھی تمہاری غلطی تھی۔ تم چھوٹے گھروں کی لڑکیاں یونیورسٹی کالجوں میں پڑھنے کے لیے آتی ہو، مگر اپنی پڑھائی کو اپنے والدین کی عزت کو نظر انداز کر کے امیر گھروں کے لڑکے پھنسانے کے لیے محبت قدم بڑھنے لگتی ہو اور حد سے گزر جاتی ہو۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تو کیسا مکافات عمر اور کون سی ذلت کی بات کر رہی ہو؟ اگر تم لوگوں کو اپنی عزت اور قدر کی اتنی پرواہ تھی تو تم لوگوں کو ایسا قدم اٹھانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب مجھے دوبارہ کال کرنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ میں تمہارے گھر پہنچ کر سب کے سامنے تمہاری حقیقت تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گا۔ مجھے پورا یقین ہے تم چھوٹے گھروں کی لڑکیاں اپنے والدین کے سامنے خود کو مظلوم ثابت کر کے ایک طرف ہو جاتی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارا وہ بھرم ہی توڑ ڈالوں۔ سالار نے ایک لفظ چبا کر ادا کیا تھا اور کال کاٹ کر موبائل کو غصے سے بیڈ پر پٹک دیا تھا۔ اگلے روز نواب خاقان دبئی سے واپس سیدھے انہی کی طرف آ چکے تھے۔ خاور صاحب، مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ آپ لوگوں نے اپنے بیٹے کی تربیت اتنی گھٹیا انداز میں کی ہے کہ یہ عورت ذات کو عزت دینا گوارا نہیں کرتا۔ حد تو یہ ہے کہ زنا کرتا ہے اور پھر اس کے اشتہار بھی لگائے جاتے ہیں۔ افسوس میں آپ لوگوں کو پہچان نہیں پایا اور اپنی بیٹی آپ لوگوں کے حوالے کر بیٹھا، مگر اب بھی کچھ نہیں بگڑا۔ میں اپنی غلطی سدھارنے کے لیے ہی یہاں پر آیا ہوں۔ میرا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ امید ہے آپ لوگوں کے گھر میں طلاق کا فیصلہ کر دیں گے، خود کو اور مجھے عدالتوں کے دھکے کھانے پر مجبور نہیں کریں گے۔ نواب خاقان نے حتمی فیصلہ سنایا تھا اور خاور صاحب یہ سن کر بوکھلا گئے تھے۔ نواب صاحب، غصے میں فیصلہ کرنے کے بجائے تھوڑا سا تحمل رکھیں۔ میرے بیٹے کو پھنسایا گیا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ میری بات پر یقین کریں، میری بھی بہت بدنامی ہوئی ہے۔ ہمیں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اس مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ خاور صاحب نے نواب خاقان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کوششیں کی، ہرگز نہیں۔ اب بات کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ آپ کا بیٹا زانی ہے اور آپ کو اپنی عزت کی فکر ہے۔ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ یہ ناقابل معافی گناہ کر بیٹھا ہے۔ زنا کی سزا پوری کیے بغیر کوئی معافی نہیں ملے گی۔ گناہ کبیرہ کرنے کے بعد بھی آپ لوگوں کے اطمینان قابل دید ہے، مگر میری بیٹی یہ بات ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ اس کی تربیت میں نے کی ہے۔ وہ زانی اور شرابی جواری مرد سے نفرت کرتی ہے اور شادی کے لیے بھی یہی شرط رکھی تھی کہ جو بھی آپ لوگوں کو مناسب لگے، بس یہ 3 برائیاں اس میں ہرگز نہ ہوں۔ مگر افسوس، میں اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے میں ناکام رہا۔ میں نے آپ لوگوں کی ظاہری شخصیت پر اعتماد کر کے آپ لوگوں کے ساتھ رشتہ داری کی اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے، جس پر میں اپنی بیٹی کے سامنے بے حد شرمندہ ہوں۔ مگر اپنی شرمندگی کی وجہ سے میں اپنی بیٹی کو اس تلخ حقیقت سے ناواقف نہیں رکھوں گا اور نہ ہی مزید یہاں پر رکنے کی اجازت دوں گا۔ اور اپنے بابا کی آمد کا سن کر ان سے ملنے کے غرض سے ڈرائنگ روم میں آتی میرا اپنے بابا کے منہ سے سالار کے بارے میں زانی کے الفاظ سن کر اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی تھی۔ بیٹا، ہمیں معاف کر دو اور اپنے بابا کو سمجھاؤ، میرے بیٹے سے غلطی ہوئی ہے اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی ہے۔ تم اسے معاف کر دو اور یہ گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس مشکل وقت میں میرے بیٹے کو تنہا مت چھوڑو، اس سے سب سے زیادہ تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے۔ میرا بیٹا بہک گیا تھا، مگر تم بہت صابر اور اعلیٰ ذوق کی مالک ہو۔ کیا تم ایک بار میرے بیٹے کو معاف کر کے غلطی سدھارنے کا موقع نہیں دو گی؟ شائستہ بیگم نے صرف کہا ہی نہیں بلکہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر مرحا سے منت کی تھی، مجھ سے نہیں بلکہ اس رب سے معافی مانگے جس کی بتائی ہوئی حدود کو آپ کے بیٹے نے پلانگ کر اتنا بڑا گناہ کیا ہے۔ مجھ سے کسی بھی قسم کی امید مت رکھیے گا، میں آپ لوگوں کے کسی کام نہیں آؤں گی۔ میرا بھی یہی فیصلہ ہے جو بابا نے کہا۔ میں یہاں پر مزید ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گی۔ مرحا نے اسی انداز میں بدتر دل ہو کر اپنا فیصلہ سنایا تھا جیسے کچھ عرصہ پہلے تک ہر دوسری لڑکی کے سامنے سالار احمد پتھر دل بن جایا کرتا تھا۔ دوسری کمزور اور بے بس لڑکیوں کی منت اور فاستوں کو کھاتے میں نہ آنے والا سالار احمد کی آنکھوں کے سامنے آج اس کی ماں باپ نواب خاقان اور اس کی بیٹی مرحا کے سامنے منت ترلے کرتے رہ گئے، مگر انہوں نے ایک بات نہیں سنی اور اپنی مرحا سامان پیک کر کے ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر چلی گئی۔ مرحا کی خواہش پر سالار احمد نے اس کو طلاق دے دی تھی اور یوں نواب خاقان سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو چکا تھا۔ مگر بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی تھی۔ سالار کے اپنے خاندان والوں نے بھی رفتہ رفتہ ان کے ساتھ تعلقات ختم کرنا شروع کر دیے تھے۔ سالار کی وجہ سے اس کے ماں باپ نے بھی اس قدر ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا تھا کہ تھک کر ملک چھوڑ جانے کا فیصلہ کیا اور چند ماہ کے اندر پوری جائیداد، کاروبار اور گھر بار سب کچھ بیچ کر وہ تینوں افراد ہمیشہ کے لیے دوسرے ملک
میں منتقل ہو چکے تھے۔ سالار کو میرا کے رویے نے شدت سے یہ احساس دلایا کہ وہ منال اور اس جیسی دوسری لڑکیوں کے ساتھ کس قدر زیادتی کر چکا تھا۔ سالار احمد لڑکیوں کی نازک اور جذبات کے ساتھ کھیل کر خود کو بری ذمہ کر لیتا تھا، مگر آج میرا نے اس کی ذات اور اس کے جذبات کو پیروں تلے رون دیا تھا تو سالار نے ٹھکرائے جانے کا درد محسوس کیا۔ اس کو منال کی بددعا سے خوف محسوس ہوا تھا، مگر وہ اپنے کیے پر پشیمان نہیں ہوا تھا۔ اس نے اپنے گناہوں کی تلافی کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور اللہ نے جو رسی دراز کی تھی یکلخت کھینچ ڈالی تھی۔ سالار احمد اپنے غرور اور اپنی انا کے ساتھ منہ کے بل زمین پر گرا تھا۔